Okay, so market is a place where a buyer and a seller interact among each other, and an economical transaction must take place. Okay, one party should give something, and the other party should take that thing in return of some monetary value, right? Now, if I go into more depth, then the monetary value is not a necessary condition that is being paid by the buyer. Okay, if I am the seller and you are the buyer, and if I am selling you something, it is not mandatory that you will give me something in terms of money, but you should give me something which has a value. Okay, you should give me something which has a value, and that system is known as what? Market. No, मार्केट नहीं. Transaction. क्वेश्चन समझा नहीं तुम लोगों ने. मैं कह रहा हूँ कि if I am the seller and you are the buyer, okay, if I am the seller, you are the buyer, and if you are purchasing something from me, then I should expect something from you in return, right? Now it is not mandatory that I am expecting something in terms of money. Okay, it is not that always I'm expecting something in terms of money. You can give me any other thing as well, but it should have a value. Then this system of transaction is known as what? Barter system. Yes, this is known as barter system, where we कोई लिखा भी है? तो लिखा अच्छा चैट में है क्या? अच्छा चैट. Oh, my fans. हाय, हाँ सुनाई दे रहा है. ओके विनीत. हाँ, तो गुरप्रीत ने लिखा barter. Yes, गुरप्रीत, barter system. So this is known as barter system. Okay, and let me go into more depth. मार्केट स्ट्रक्चर का जहाँ तक बात है, तो जैसे मैंने कहा कि the thing which the buyer is returning to the seller after purchasing something, उसका एक वैल्यू होने से ही हुआ. ओके, नाउ once upon a time, it's around 100 years ago, किसी जेल में, I don't remember the name of the jail or the name of the country, but किसी जेल में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. जैसे जेल में क्या होता है, सब लोग काम करते हैं और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है. जेल में एक यूनियन टाइप का होता है वहाँ पे. तो वहाँ पे पैसा नहीं, वहाँ पे सिगरेट मिलता था लोगों को. सिगरेट, किसी ने काम किया तो उसे सिगरेट मिलेगा. तो सिगरेट की वहाँ एक वैल्यू हो चुकी थी. जैसा कि अब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सारे स्मोकर्स ही थे. जो नॉन स्मोकर थे वो भी सिगरेट एक्सेप्ट करते थे. तो द नॉन स्मोकर्स वर आल्सो एक्सेप्टिंग सिगरेट्स in return to their services which they were providing. सपोज किसी ने आज ड्रेन साफ किया तो उसे सिगरेट मिलता था. रखो तुम 5 सिगरेट रखो, या कोई दूसरा काम किया उसे कहा गया तुम 10 सिगरेट रखो, तुम 12 सिगरेट रखो. वो लोग स्मोकर्स नहीं है, लेकिन तभी वो लोग सिगरेट एक्सेप्ट करते थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो करेंसी थी वो सिगरेट हो चुकी थी. करेंसी वाज सिगरेट. ओके, तो जैसे कि अगर मैंने काम किया, सपोज झाड़ू लगाया, और किसी ने मुझे सिगरेट दिया, 10 सिगरेट झाड़ू लगाने का वैल्यू, तो बस वो सिगरेट एक्सेप्ट करूंगा इवन इफ आई एम अ नॉन स्मोकर. व्हाई? बिकॉज उन 10 सिगरेट से मैं फिर अपना कुछ ट्रांजैक्शन करूंगा. सपोज उन 10 सिगरेट से मैंने 2 सिगरेट दिया और ब्रेड खरीद लिया, तो सिगरेट वाज अ मीन ऑफ ट्रांजैक्शन. सो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी डन in terms of money. It should be done in any thing which should have a value attached to it. Okay, it should have a value attached to it. All right, so market is a process where we transact among each other, not necessarily returning money. It should be anything which has a value. So it should be clear. So is it clear to all of you that what is market? Is it clear that what is market? Yes. Yes. Okay, so now if I classify market, then there are different classifications on the basis of different aspects. Okay, so if I classify market on the basis of geographical location, so how many types of market can I get, or how many types of market are there if I classify them on in terms of geographical location? Can you tell me, any one of you? अगर मैं ज्योग्राफिकल टर्म्स के बेसिस पे बोलूं तो कितने मार्केट्स होंगे? बहुत सारे. बताओ जरा नाम. अच्छा, local market. Yes, local market. And so we have local market, then we have national market, international market, right? तो ये सारे मार्केट हो सकते हैं. जैसे
लोकल मार्केट हो गया हमारा बेहला बाजार. तो बेहला बाजार इज अ लोकल मार्केट where people come and they transact among each other. And national market, so can you tell me a national market? Give me an example of national market. Rohit, एक national market का example दो. Big Bazaar. Yes, Big Bazaar is a national market. Very good. Okay, international market. International market. So इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है जिसका हम लोग इंपोर्ट करते हैं. मोबाइल फोन, मोबाइल इंडस्ट्री का जो मार्केट है, दैट इज एन इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज a lot of mobile phones in India are coming from abroad, so that is an international market. Okay, so geographical location के basis पे हम लोगों ने ऐसा classify कर दिया. Now the thing which is most important in your syllabus वो है classification and market on the basis of competition. Okay, so write down in your note copy that a classification of market on the basis of competition. एक मिनट दादा पे. हो गया लिखना? On the basis of competition. Now competition किस चीज में कंपटीशन? कंपटीशन किस चीज में करना है? यस रोहित बोलो. कंपटीशन among whom? Sellers. Yes, competition among sellers or firms. You could write firms, not sellers. Okay. Yes, Vinit, BSC is a good example of national market. Very good. तो सेलर्स या फर्म के बीच में कंपटीशन होना है. तो इस बेसिस पे हम लोगों का अलग अलग क्लासिफिकेशन है मार्केट का. ओके, सो क्लासिफिकेशन में मैं आता हूँ एक एक करके. ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, okay, so on the basis of competition, markets can be classified as perfectly competitive market, and imperfectly competitive market. Okay, so एक है perfectly competitive जिसमें competition is perfect और strongest, and other one is imperfect मतलब जिसमें competition उतना strong नहीं है. Now imperfect competitive market का अपना varieties है. इसमें हो सकता है मोनोपोली और ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, ये तीन क्लासिफिकेशन इसमें हो सकता है. ना ओलिगोपोली में वी हैव डुओपोली. सो क्लासिफिकेशन इज वेरी वाइड. तो तुम लोग को बस यहाँ तक याद रखना है, डुओपोली छोड़ के सब याद रखना है. सो मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, इसका तीन क्लासिफिकेशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, इतना तक तुम लोगों को याद रखना है. नाउ तुम लोग के सिलेबस में डेप्थ में जो है वो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली. ये दो काफी डेप्थ में दिया गया है. ओके, सो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को, perfectly competitive or monopoly. We will discuss about the features of perfectly competitive market, and then we will discuss how a perfectly competitive market maximizes their profit. So the sole objective of any firm or any organization is to maximize their profit. Okay, so the objective is maximization of profit. That is the sole objective. हम लोग को इसी के एनालिसिस करना है कि how a firm maximizes their profit margin. Okay, so is it clear? The classification of market, is it clear to everyone?
Yes. ओके, एक मिनट। ओके, सो अब इसके बाद ना हम लोग थोड़ा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है उसका, कैसे उसमें काम होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या मार्केट मतलब हुआ कि जहाँ पे इंटरेक्शन हो लोगों के बीच में, सेलर और बायर के बीच में, इट्स अ टू पार्टी इंटरेक्शन। ओके, और जहाँ तक तुम लोग को याद है, एक चीज़ मैं वापस याद बता दूं तुम लोगों को कि डिमांड सप्लाई बताने से मैंने कहा था कि अगर समझो मैंने ग्राफ में सिर्फ ऐसा बनाया, पहला पहला डायग्राम, ओके, डायग्राम 1, दूसरा डायग्राम जैसे मैंने ग्राफ में ऐसा बनाया है, ऐसा, ठीक है। तो बताओ इसमें ये दोनों क्या मार्केट है? इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों, क्या ये मार्केट को डिस्क्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बताओ मेरे को। ये यहाँ पे है प्राइस और यहाँ पे है क्वांटिटी। पहले तो ये बताओ ये डायग्राम किस चीज़ का है, कौन सा ग्राफ है ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Demand supply. Okay, so this is demand and this is supply. It's very easy. Okay, now my second question, does these diagrams represent market or not? Yes. Come on, answer दो मेरे को। Does these diagrams represent market or not? Yes. तुम्हारा आंसर ले लिया मैंने, बाकियों से पूछ रहा हूँ। Oh, नो sorry. नो नो। आदर्श, ना, विनीत, रोहित थे? ये मैं ही बोला, रोहित किसको पूछ रहे हैं? ओ, विनीत, गुरप्रीत थे? Then थिंक एंड आंसर कि ये क्या मार्केट डिस्क्राइब कर रहा है ये दोनों डायग्राम? अनिशा said yes, रोहित said no, विनीत तो आंसर नहीं दे पाएगा। विनीत ने कहा यस, यस विनीत इज डिस्क्राइब कर रहा है, विनीत इज सेइंग यस। ओके, थेया की बॉल टेस्ट कॉर। ओके, सो कोई बात नहीं, मैं बता दूं कि दिस डायग्राम्स डज नॉट डिस्क्राइब मार्केट। ये मार्केट डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ओके, बिकॉज अभी मैंने क्या कहा कि मार्केट इज अ टू पार्टी इंटरेक्शन, मार्केट इज अ टू पार्टी इंटरेक्शन, we should have a buyer and we should have a seller. This diagram represents only buyers because इसमें सिर्फ डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व किसका होता है? बायर्स का। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली सेलर्स बिकॉज वी हैव अ सप्लाई डायग्राम। सप्लाई डायग्राम किसका होता है? सेलर का। so these two diagrams does not describe, do not describe मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर कौन डिस्क्राइब करेगा? मार्केट स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेगा अगर आई कंबाइन दिस डायग्राम्स, सप्लाई डिमांड। okay, so if my supply curve and demand curve are intersecting or if they are given on the same plane, then it means that the graph is showing market process or market mechanism। okay, because यहीं से हम लोग को equilibrium price and equilibrium quantity मिलता है। okay, so ये वाला पार्ट अगर भूल गए हो तो वो पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ऊपर, ठीक है? तो उसका जाके देख लेना तुम लोग। इसके बाद यहाँ तक तो समझ में आया तुम लोग को? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, जैसे मार्केट मैंने कहा कि दो लोग आके इंटरेक्ट करेंगे, यानी सप्लाई डिमांड दोनों होना चाहिए हम लोगों का। और उसके बाद है, इस वर्ड पे ध्यान दो, कॉम्पिटिटिव, देना आएंगे परफेक्टली पे। कॉम्पिटिटिव मतलब जैसे कि रोहित ने कहा कंपटीशन अमंग थे, आई रिप्लाइड इन द अदर अकाउंट ऑफ सक्सेस, मतलब आई रिप्लाइड इन द अदर अकाउंट ऑफ मतलब थे, समझ में नहीं आया? एक मिनट,
ओ अच्छा अच्छा, आई गॉट इट। ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं। सो क्या कह रहा था मैं, भूल गया। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब एज रोहित सेड कि competition among the firms. So there are a lot of firms in the market, there are a lot of firms in the market, and all the firms in the market are competing among each other on the basis of what? They're competing on the basis of what? Like in a class, the students compete on the basis of academics, on the basis of sports, on the basis of some other activities. So firm compete in a market structure on the basis of what parameters? Can you tell me on what parameters they compete? Try to answer. Think about it. That on what, if you are a businessman, and if your friend is also a businessman, then on what basis you will compete? Uh, Profit. So Thea said profit. Okay, profit के basis पे compete करेंगे, but profit थोड़ा बाद में आता है. उसके पहले how will they maximize their profit? What should be the parameter? No, it's not exactly correct. Uh, it is actually, the answer is price. They compete on the basis of the price and the quantities they are selling in the market. Okay, so the main factor is price. That what should be the price in the market, and how price is determined? Price is determined by the intersection of demand and supply curve, right? When my demand curve and supply curve intersect, I get the price. Okay, quantity, quality and quantity. क्वालिटी एंड क्वांटिटी हो सकता है, बट क्वालिटी क्या होता है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बताऊंगा तुमको. when I come to the word perfectly, then you will get your answer beneath. Okay, that why I am not saying quality. Okay, so they compete on the basis of price, and they compete on the basis of quantity, that how many units of quantity I am willing to sell, or how much price I am willing to charge. So on that basis they compete. So the very famous example is of Jio, right? Jio competed on the basis of both price and quantity. They decrease the price and they increase the quantity. So if someone has the potential to do that, to decrease the price and to increase the quantity, it is very sure from the economic model that they will capture the market, right? They will capture the market, and exactly the same thing happened after the introduction of Jio Telecoms, that the other industry, the other firm were wiped out from the market. Okay, and what happened after that? Just after that, other companies started to decrease their price. They started to switch their policies, right? They started to make some changes in their pricing structure, their plans, and their quantity offered. So this is what competition is, right? So this is what competition is. Now whether the telecom industry is a perfectly competitive market or not, that is a different issue. We'll discuss it later. So I hope you have got understood that what is competitive and what is the essence of competition in a market. Okay, now coming to the word perfectly. What is the meaning of perfectly competitive market? Perfectly competitive market का मतलब है कि each and every individual or each and every firm are equal. मतलब they have the same potential, they have everything same. Now suppose in a class, if all the students are of same potential, everyone, सबको 100 में 100 आ रहा है, तो सभी टॉप कर रहे हैं, सब टॉप, ठीक है? या फिर सब हो रहे हैं, सबको 0 आ रहा है, तो सब फेल. तो इसका मतलब है तो सब में कंपटीशन बहुत सीवियर है. दिस इज कॉल्ड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव क्लास. ओके, जिसमें कोई चेंज हो ही ना, सब लोग सब एस्पेक्ट में सेम है. एकेडमिक्स हो जाए, स्पोर्ट्स हो जाए, या और भी कुछ हो जाए, आर्ट हो जाए, लिटरेचर हो जाए, सब में सब टॉप क्लास के. तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव क्लास. तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के साथ अगर मैं इसे जोड़ूं, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब होता है कि जितने भी फर्म्स है मेरे इंडस्ट्री में, सब के सब सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. सो विनीत, यू आर गेटिंग द आंसर नाउ. सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्लास में सब सेम स्टूडेंट है और अगर क्लास के टॉपर को चुनना है, तो कैसे चुने? इट विल बिकम वेरी टफ, और इट विल बिकम impossible to select a topper, to differentiate students among themselves, right? So perfectly competitive market में भी ऐसा ही होता है. It becomes very difficult for the consumer to differentiate the product given by a firm from different firm, from other firm.
जितने भी फर्म है सब सेम क्वालिटी के सामान बेच रहे हैं, सेम यूनिट्स में बेच रहे हैं, सेम प्राइस में बेच रहे हैं, प्राइस में भी फर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में सोचो, अगर सारे फर्म सेम प्राइस में बेच रहे हैं तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का प्राइस क्या होगा, प्री डिटरमाइंड प्राइस होगा। So they are known as, these people are known as price taker. They are price taker. They don't decide price. They they accept price. तो प्राइस ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। प्राइस एक्सेप्ट कैसे करते हैं, सप्लाई डिमांड में जहां पे प्राइस शो करता है, दे एक्सेप्ट दैट प्राइस, दे डोंट नेगोशिएट, दे नेवर नेगोशिएट। Now if they start negotiating, then what will happen, we'll come to that point. So since they are perfectly competitive market, मतलब competition perfect है, price same है, so they are price taker, so they are known as price taker. They accept what is being offered in the market, right? They accept what is being offered in the market. They can't influence the market. They can't influence the market. Okay, they are very weak people, but they have a large market structure. They have a large market share. Okay, और विनीत को शायद आंसर मिल गया कि जो इसमें लिखा क्वांटिटी के बारे में। सो दे कैन नॉट कम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी बिकॉज क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी सबका सेम है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबका क्वालिटी सेम है। सो इज इट क्लियर द नेचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इज इट क्लियर टू एवरीवन, और शैल आई रिपीट वंस अगेन? ओके रोहित, थैंक यू। अदर्स? yes Vinit, okay. Anisha, Gurpreet? Yeah, okay, good, Gurpreet? हाँ भैया। Okay, very good. All right. So इसके बाद का जो नेचर है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, दैट दे हैव very important feature actually. They have large number of buyers and large number of sellers. Large number of buyers and large number of sellers. So number of buyers भी ज्यादा है, number of sellers भी ज्यादा है। क्यों? Because price is same. प्राइस इज सेम, कोई एक ज्यादा हो ही नहीं सकता। मार्केट को अगर बैलेंस में रखना है तो दोनों को ज्यादा होना पड़ेगा, लेवल दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, दैट दे हैव लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ओके, इसके बाद आई विल मूव टू ग्राफिकल एनालिसिस। दैट विल बी अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज अगर प्रोडक्शन तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो इफ यू हैव रिवाइज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट देन शायद इजी हो जाए तुम लोगों के लिए। ऑलराइट, सो now okay. तो अभी देखो, जैसे कि थिया ने कहा कि प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। 10 मिनट्स लेफ्ट टू एंड दिस वीडियो। यस विनीत, 10 मिनट्स लेफ्ट है। प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ईच एंड एवरी फर्म आर competing in the market. Why they are putting so much effort? The sole objective is to earn profit. That's all. The sole objective is to earn profit. अब वो प्रॉफिट दो तरीके से कमा सकते हैं, या तो अपने प्राइस को बढ़ा के, या तो अपने क्वांटिटी को कमा के, किसी भी तरह से, बट सोल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। नॉट ओनली अर्न प्रॉफिट बट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ओके, अच्छा, इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन तुम लोग से पूछना चाहता हूँ कि जो मार्केट तुम लोगों ने देखा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्या तुम लोगों ने आज तक अपने 16-17 साल के करियर में, जीवन के जो करियर है 16-17 साल का, इसमें कहीं पे भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट देखा है? अगर देखा है तो बताओ। नहीं देखा तुमने? ऐसा मार्केट नहीं देखा जहाँ सब कुछ सेम हो, प्राइस सेम हो, ऐसा मार्केट नहीं देखा? नहीं देखा है। नहीं देखा है, एक्चुअली किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि होता ही नहीं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नेवर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैंने तो देखा है, मैंने तो आईआईटी लिखा है। क्या लिखा है? आईआईटी। आईआईटी क्या? आईआईटी लिखा है? आईआईटी इज नॉट अ मार्केट। एक्सप्लेन करना ये बाद में तुम मेरे को, आईआईटी क्यों लिखा। तो आईआईटी एग्जाम्स ना क्या सब बोल रहे हो, एक्सप्लेन करना मेरे को बाद में। आई विल लिसन टू यू, तुम क्या करना चाहते हो। ओके,
तो जैसे कि मैंने कहा कि ये मार्केट एग्जिस्ट करता ही नहीं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नेवर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन तभी इसको पढ़ाया जाता है। क्यों? बिकॉज पहले हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक आइडियल मार्केट कैसा होता है, उसके बाद जब इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव पढ़ेंगे, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि आइडियल स्ट्रक्चर से वो लोग कितना डिफर कर रहे हैं। आइडियल कैसा होना चाहिए पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद बाकी पढ़ा जाता है, ताकि हमें ये आइडिया मिले कि जो आइडियल सिचुएशन है उससे रियल लाइफ का सिचुएशन कितना डिफर कर रहा है, डिफरेंस कितना है। ओके, तो ऐसा कोई मार्केट होता नहीं है जहाँ सारे प्रोडक्ट्स सेम हो। समझो तुम गए आलू के बाजार में, तो होता है कि इस दुकान का जो आलू है उस दुकान का आलू दोनों बिल्कुल सेम, इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज, राइट। प्राइस होता है कि टू सम एक्सटेंट सेम हो सकता है ना। ये जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से डिफर करता है, समझो ये एक स्ट्रेट लाइन है विच इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, बट रियल लाइफ में क्या देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे हमेशा जाता है, इससे थोड़ा आगे पीछे हमेशा जाता है। तो ये डिफर करते हैं कितना आगे या कितना पीछे ये जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, कि मार्केट में कॉम्पिटिशन का डिग्री कितना है। जब हम लोग मोनोपोली मार्केट पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा हम लोग को कि वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन का डिग्री है वो बिल्कुल ही कम चुका है, कॉम्पिटिशन है ही नहीं मार्केट में, सिर्फ एक सेलर है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। और उसके बाद जब ओलिगोपॉली पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और नजर आएगा हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग का एनालिसिस होने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर का। सो जस्ट डोंट गो थ्रू ओनली द बुक स्टफ, थोड़ा सोचो इसके बारे में दैट रियल में कैसा होता है, ठीक है, देन यू विल लर्न। अच्छा, हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि इसमें क्या, हाँ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लोग का जो ग्राफिकल एनालिसिस होगा उसमें हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट अर्न कैसे होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद उसका डिस्कशन बाद में होगा। जैसे प्रॉफिट, पहला चीज, प्रॉफिट को डिनोट करना है किस चीज से, प्रॉफिट इज इन इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय पाई, मैथ्स का पाई। ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश माइनस डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा ये दोनों डैश में, डैश माइनस डैश, बताओ ये क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू डैश माइनस डैश, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो इसको अगर मैं इम्प्रोवाइज करूं तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, बेचने के बाद जो आए मेरे पास, तो इकोनॉमिक्स में उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू, राइट। और कॉस्ट प्राइस मतलब मेरे को खरीदने में कितना खर्चा पड़ा, तो इकोनॉमिक्स में उसे कॉस्ट कहते हैं। तो प्रॉफिट पाई इज इक्वल टू आर माइनस सी। ओके, नाउ ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा, आर के ब्रैकेट में लिखा, माइनस सी के ब्रैकेट में लिखा। बता सकते हो ब्रैकेट में क्या होगा? इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा वापस से, लेकिन अब सबके पास में मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया है, तो ब्रैकेट में क्या होगा बता सकते हो? कैन यू टेल मी, ट्राई। क्यू, वेरी गुड विनीत, वेरी गुड, क्यू। सो ब्रैकेट में क्यू होगा, क्यू। व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? Q is the quantity. So profit is a function of quantity, revenue is a function of quantity, and cost is a function of quantity. ठीक है, function of quantity मतलब रोहित, I explained function last day मैथ्स क्लास में, है ना, मैथ्स क्लास में मैंने फंक्शन समझाया था। R is a function of Q, C is a function of Q, और मैंने इको में बताया था फंक्शन क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि quantity is the input and R is the output, right? क्वांटिटी इज द इनपुट एंड आर इज द आउटपुट। अगर तुम देखो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, समझो आई हैव अ नो रेवेन्यू शेड्यूल, से प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, व्हेन प्राइस इज 0, quantity is 0, when price is 10, quantity is 5, when price is 20, quantity is 4, when it is 30, it becomes 3, when it is 40, it becomes 2. So this is the price and quantity schedule. Now if I ask you that what is the total revenue for this case, for this case, for this case, for this case,
तो कैसे निकालोगे बताओ? हाउ विल यू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू हियर? If I have shown you the given you the revenue schedule, and if I ask you that what should be the total revenue for this value, then how will you calculate? Come on, answer quick. 1.5 मिनट बाकी इस मीटिंग का. क्या फिर से बोलिए? ये है हम लोग का रेवेन्यू शेड्यूल. प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है. मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए जब प्राइस 20 है और हम लोग 4 यूनिट खरीद रहे हैं, तो मेरा 4 यूनिट बेच रहे हैं, सॉरी खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा उस केस में? वेरी इजी. तुमने कितना अर्न किया? अगर 20 रुपए करके बेच रहे हो, 4 यूनिट बेचा है तुमने, तो कितना अर्न किया? 80. 80. सो टोटल रेवेन्यू इज 80. तो कैसे कैलकुलेट किया टोटल रेवेन्यू को? प्राइस इंटू 20. क्वांटिटी, राइट? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, है ना? सो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया P इंटू क्यू. तो ये इसमें एक Q है, इसमें एक P है, मतलब टोटल रेवेन्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस पे और क्वांटिटी पे. अच्छा ठीक है, नई मीटिंग में मैं बताता हूँ, ठीक है? ये खत्म होने वाला है.